Assalamu alaikum everyone. Going to the part 10 of coordination compounds. In this part, we'll discuss about crystal field theory. In the previous session, we have gone through valence bond theory. We have gone through the different postulates and we have gone through some examples also how the coordination compounds are formed. उस थियरी में कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि एजम्पशंस बहुत सारे थे. आपको स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है और वीक लिगैंड कौन सा है, करेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है आपको पता नहीं चल रहा था कि किसको स्ट्रॉन्ग लिगैंड बोलना है और कौन से वीक लिगैंड्स है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन ब्रीफ एक्सप्लेन्ड है लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है, राइट. इस वजह से हम ये एक थियरी पढ़ते हैं जिससे आपको जो है फिर से थोड़ा स्ट्रक्चर यानी कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो पता चलेगा. एंड इट विल टेल यू अबाउट द कलर प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. So the main importance of this theory is it explains about the color property present in complexes. Let's start the discussion upon this crystal field theory. Now, according to this crystal field theory, in shortcut we call it as CFT. According to this, it says in coordination compounds, the metal atom and the ligands are bonded or they are having electrostatic force of attraction. According to this theory, it says that the formation of complexes is purely electrostatic, that is ionic nature is present between the metal and the ligand, that is whatever bond is formed between metal and ligand, it is considered to be ionic, where the ligands ligands are commonly the negatively charged species or some neutral molecules which carry lone pair of electrons. So here, according to this theory, those anions, the negatively charged species, are called as point charges and the neutral molecules are called as dipoles. दोनों में भी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अनायॉन्स में नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इन एनायॉन्स को हम पॉइंट चार्जेस के तौर पे कंसिडर करते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम एक डाइपोल के तरह ट्रीट करते हैं. डाइपोल यानी कि टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस. सो अज्यूमिंग this species, when they are combining with the metal atom or ion, that combination, that bonding is considered to be ionic, right? Now if we talk about d orbital, now we know that d orbital or the d subshell has 5 suborbitals based on their orientations. That is, when you talk about the magnetic quantum number, we come across that is totally 5 orientations are there for d subshell, that is dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. डी सबशेल के टोटली 5 ओरिएंटेशन होते हैं जिनको हम कॉमनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं. those based on the orientations we classify that d subshell into 5 suborbitals based on their double dumbbell shapes lobe orientation. ओके, अब जैसे कि डी एक्स वाई अगर लेंगे आप, I'll consider this as x axis and this was y axis. In dxy, that is dxy orbital, its double dumbbell shaped lobes will be lying in between x and y plane, that is between x and y axis. These double dumbbell shaped lobes will be existing like this, right? In the same manner, when you go to dyz, in dyz also, if I assume this as y axis and this as z axis, again the lobes will be in between the axes. If you go with xz, I'll assume this now as x and this as z axis, you will find that the lobes will be in between
x एंड z एक्सिस, यानी कि तीनों का ओरिएंटेशन अगर देखेंगे तो डेजिग्नेशन के मुताबिक इनके जो डबल डबल शेप लोब्स है एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड के एक्सिस के बीच में लाई होते हैं, दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस, right? So out of 5, these are the 3 orbitals which lie in between the axis. Now when you talk about dx square minus y square, this is x axis, this is y axis. In dx square minus y square, their lobes lie exactly on the axis, like this, right? And when you talk about dz square, it is having this type of orientation. So here if I assume this as z axis, so it will have only one dumbbell along with a ring. We commonly call it as a baby Suter model or baby Suter shape orbital, that is dz square. Means again its lobe will be lie exactly on the z axis. तो टोटली 5 में से 3 जो है इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं और 2 जो है एग्जैक्टली एक्सिस पे आते हैं। और ये पांचों की एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो पांचों की एनर्जी सेम, all these 5 orbitals are equal in their or equivalent in their energy, hence we call them as degenerate orbitals. इन पांचों को हम बोलते हैं degenerate orbitals. These orbitals are degenerate since they are having equal energy. तो जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आते हैं हंट्स रूल अप्लाई होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होते हैं ऑर्बिटल्स में, बाद में पेयरिंग हो जाता है, राइट? लेकिन इस CFT थियरी के मुताबिक जब भी ये डी सबशेल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स में ये डी ऑर्बिटल जो होता है, ये डी ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके जो है अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करके बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कि हम वीबीटी थियरी में पढ़े हैं, राइट? यहाँ पे अब देखेंगे तो ये डी सबशेल जो है अपने फिर से ये डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन देखते हैं यहाँ होता क्या है, ये 5 ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है, लेकिन जब आप मेटल आटम लेते हैं, मेटल आटम या आयन, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये इनका ओरिएंटेशन फेरी फेरी पे होता है, यानी कि आउटर पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो एस ऑर्बिटल है, लेकिन ये पीनल्टीमेट शेल वाला डी ऑर्बिटल भी इसका जो एक्सपोजर रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा, एकदम ऑलमोस्ट सर्कम्फरेंस पे आएगा, एंडिंग पार्ट पे आएगा, बाउंड्री की तरफ रहेगा इनका ओरिएंटेशन, राइट? नाउ when these ligands come, that is the negative anions or neutral molecules, when they are coming close to this metal ion, what happens is इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे डी ऑर्बिटल में और लिगैंड के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ रिपल्शन फोर्सेस, दैट इज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल and the lone pair of electrons present on the negative anions or the neutral molecules. Now, initially that orientation or whatever electron cloud will be there around the metal ion, it will be symmetrical, uniform way में जो है पूरे electrons surrounded रहते हैं, जिससे जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा सिमेट्रिकल मैनर में, यूनिफॉर्म मैनर में रहेगा, जिससे ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही रहती है, यानी कि डी जनरेट डी ऑर्बिटल जो है पूरे बैलेंस्ड ही रहते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड्स करीब आते जाते हैं, व्हेन दे कम वेरी क्लोज टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दैट टाइम these d orbital electrons, that is d orbital and the electrons present in the ligands, they will प्रोड्यूस मोर रिपल्शन फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, जिससे इन डी ऑर्बिटल पूरे पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दे विल बी रेज्ड अप इन एनर्जी, right? No doubt they are degenerate, but when the ligands approach very close to the central metal atom, these orbitals energy will be raised up, थोड़ी इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इंक्रीज क्यों हो रही है? रिपल्शन फोर्सेस की वजह से। एंड रिपल्शन फोर्सेस ट्राइज टू
decrease the stability. Whenever stability decreases, energy value increases, right? Now, what happens is when these ligands come very, very close, these 5d orbitals will lose their degeneracy. यानी कि 5 ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी खो देंगे क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस इम्बैलेंस रहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं. दे विल बी more at one side and less on the other side. So where it will be less, where it will be more, it depends on the type of approach of the ligands, right? किस ढंग से ligands approach हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है. तो वो यहाँ पे हम आपको डिस्कस करना है. यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ पे जब भी ligands d ऑर्बिटल के करीब आते हैं तो ये d ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी खो देते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? Splitting of degenerate d orbitals into two different energy sets in the presence of ligands is called as crystal field splitting, right? Crystal field splitting is splitting of degenerate d orbitals into two different sets of energy in presence of ligands is called as crystal field splitting, right? यानी कि लिगैंड्स के प्रेजेंस में ये जो डी ऑर्बिटल दो अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग अलग मेथड से होता है. पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? मीन्स व्हेन द लिगैंड्स आर अप्रोचिंग इन ऑक्टाहेड्रल मैनर, that time how these d orbital will lose their degeneracy and in what way they will split it, we'll see now. Later on we'll go with the other part. Now just now we have seen totally 5 orbitals. They are having different orientations, out of which 3 are having one type of orientation, the other 2 are having different type of orientation. dxy, yz और xz का हम orientation देखें, इनके lobes in between the axis आते हैं, और dy x square minus y square और z square इनके lobes exactly axis पे आते हैं. अब होता क्या है, अब सपोज ये मैं ड्रॉ करता हूँ अलग अलग axis. Suppose as I'll take it as x, this as y, and here I'll draw one more axis z. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जैसा बन जाता है. 4 points in the same plane, one at the top, another at the bottom, right? ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा ज्योमेट्री बन रहा है. जब ये सपोज यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर है, लिगैंड्स अगर octahedral नहीं कि 6 corners will be there, 4 corners in the same plane, one at the top, another at the bottom. जब लिगैंड्स octahedral manner में मेटल एटम के या आयन के सराउंडिंग में अप्रोच होते हैं, when they come close to the central metal atom or ion in octahedral manner, तब क्या होता है, octahedral यानी कि 6 लिगैंड्स आते हैं. तो जब ये करीब आएंगे मेटल एटम के तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपल्शन फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे. किसके बीच में? मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स और ये लिगैंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्सेस डेवलप होते हैं. क्योंकि अप्रोचिंग कैसा होता है, ये लिगैंड अपने लोन पेयर के जरिए से ही सेंट्रल मेटल एटम के करीब आते रहते हैं, तो रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से ओवरऑल डी ऑर्बिटल, खासकर डी ऑर्बिटल एक्सपोज होता है. तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्सेस रहते हैं, तो इस वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है. द डी ऑर्बिटल विल बी रेज्ड अप इन इट्स एनर्जी. सपोज ये 5 डी ऑर्बिटल से सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, दे आर रेज्ड अप इन दर एनर्जी, राइट? लेकिन जब ये और करीब आते हैं तब क्या हो जाता है, 5 ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल के, दैट इज डी सबशेल के, उन पांचों में से 3 के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे और 2 के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस कम रहेंगे, या फिर 2 के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर 3 के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं. ये अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है. अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल अप्रोच, यानी कि
6 ligands are approaching in octahedral manner। और यहाँ पे देख सकते हैं हम octahedral manner में इनका अप्रोच कैसा है। पूरे लिगैंड्स इनका पोजीशन अगर हम नोट करेंगे यहाँ पर तो ये अलोंग द एक्सिस है। सपोज ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये जब अलोंग द एक्सिस अप्रोच हो रहे हैं तो ऐसे ऑर्बिटल्स जो जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे। राइट, गॉट द पॉइंट। those orbitals which are whose lobes are falling exactly on the axis, जिसके lobes exactly axis पे present है, वो ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि वही लिगैंड के बहुत करीब रहेंगे। अब जो बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थे, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये कम रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। Okay, that is the main part over here, right? So which orbitals will experience more now, more repulsion forces? Those orbitals whose lobes are falling exactly on the axis, because in octahedral approach ligands are approaching along the axis, along x, along y and along z axis। तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, 5 में से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीन जो है लेस रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। राइट, क्यों मोर रिपल्शन है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स लिगैंड्स के बहुत करीब रहते हैं। यहाँ पे क्यों लेस है, दीज रिमेन लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द लिगैंड्स। राइट, तो इससे क्या हो जाता है, ये इम्प्रॉपर यानी कि इम्बैलेंस रिपल्शन है। यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन है और यहाँ पे कम रिपल्शन है, तो ज़्यादा रिपल्शन की वजह से इन ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस कम है तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ओवरऑल सबकी एनर्जी तो बढ़ गई थी, लेकिन अब क्या हो जाता है, जब लिगैंड्स बहुत ही करीब आते हैं तो इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी रिपल्शन फोर्स ज़्यादा रहने से, और इन तीनों की एनर्जी कम हो जाएगी रिपल्शन फोर्सेस कम रहने की वजह से। इस वजह से पांचों जो डी ऑर्बिटल्स है अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। दे स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स। राइट, so here that splitting we call it as crystal field splitting, right? Splitting of degenerate d orbitals into two sets in presence of ligands is called as crystal field splitting। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पांचों ऑर्बिटल है, तो ये दो अलग अलग सेट में डिवाइड होते हैं। ये लोवर्ड इन एनर्जी डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, दे आर लोवर्ड इन एनर्जी। इस सेट को हम बोलते हैं T2G सेट। राइट, और dx square minus y square and dz square, they are raised up in energy and they belong to a set called as EG set। T2G and EG, they are designated based on the molecular symmetry concept। right, तो यहाँ पे T2G सेट में कौन से आते हैं, dxy, dyz and dxz, और EG सेट में कौन से आते हैं, dx square minus y square and dz square। right, so now they have lost their degeneracy, these two orbitals are having higher energy and these three orbitals are having low energy। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब कौन से टाइप के अप्रोच में हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल अप्रोच से हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप आता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, क्योंकि इतनी एनर्जी यहाँ पे कम हो चुकी है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। पहले इतनी थी एनर्जी, अब ये पॉइंट से एनर्जी वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया और ये पॉइंट से एनर्जी वैल्यू यहाँ तक कम हो गया। तो टोटल एनर्जी डिफरेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और एक सिंबल यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट ओ, यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड डेल्टा ओ। दिस एनर्जी वी कॉल इट एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी represented by delta। In presence of octahedral field, we write it as O as the subscript। This region we call it as barycenter, where delta O value will be equal to, it will be equal to 0। right, तो यहाँ पे पांचों में से इन दोनों की एनर्जी यहाँ तक इंक्रीज हो गई, इतना इंक्रीज हो गई।
अब हर एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उनकी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कभी भी जो है 3/5 डेल्टा ओ यूनिट्स रहेगी. It will be equal to 3/5 delta O value. That is, these two orbitals, the electrons present in these two orbitals, they are raised up by 3/5 units. And electrons present in these three orbitals, they are lowered, their energy is lowered by 2/5 delta O units. Right? तो इनकी एनर्जी पांचों के मुकाबले कितनी बढ़ गई 3/5 डेल्टा यूनिट्स और इन तीनों की एनर्जी कितनी कम हो गई 2/5 डेल्टा ओ यूनिट्स. 3/5 वी ऑल्सो राइट इट एज 0.6 delta O. Okay, 3/5 will become 0.6 delta O. In the same manner, 2/5 delta O we write it as minus 0.4 delta O. 2/5 0.4 होता है. माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि एनर्जी कम हो गई. They are lowered in energy, that's why we are writing minus sign, right? So this is the way how this d orbital will split up into two sets, that is T2g and EG set. तो इससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एंट्री रहेगा ये लिगैंड के ऊपर डिपेंड करेगा. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जब स्प्लिटिंग होता है ये जो डेल्टा ओ वैल्यू रहेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. दिस वैल्यू कैन बी लेस और मोर, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. First important factor is nothing but the nature of the ligand. Ligands strong है या ligand weak है तो उसके बेसिस पे ये डेल्टा ओ वैल्यू आता है. स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के प्रेजेंस में ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और वीक लिगैंड के प्रेजेंस में ये गैप कम रहता है. अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड्स है क्या, व्हाट आर दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगैंड्स? Now, strong ligands means they cause large crystal field splitting and weak ligands cause small crystal field splitting, right? अब ये strong और weak क्या basis पे हम divide करते हैं? We consider the absorption concept, that is absorption of light concept here, and based on experimental observations, experimental analysis based on the spectroscopic methods, we came to know that different ligands have the ability to absorb different wavelengths of light. ये पता चला है कि strong ligands, कुछ ligands हैं जो red wavelengths को absorb करते हैं या कुछ ligands ऐसे हैं जो violet wavelengths को ज़्यादा absorb करते हैं. Violet wavelengths are short wavelengths and red wavelengths are larger wavelengths, right? तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कौन से लिगैंड्स वायलेट वेवलेंथ्स के रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन से लिगैंड्स रेड वेवलेंथ्स के रेंजेस को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बेसिस पे हम पूरे लिगैंड्स को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. वी कॉल इट एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. Here we divide all the ligands or classify all the ligands based on the spectrochemical experiments carried out based on the absorption of light. So here we can find two categories of ligands, one category weak ligands, the other category is strong ligands. सबसे weakest end पे आता है iodido ligand. Iodido is the weakest ligand, means it will not cause more crystal field splitting, very small crystal field splitting will be there. यानी कि डेल्टा ओ वैल्यू जो हम देखें अभी वो बहुत बहुत कम रहेगा, वही इंक्रीजिंग और उसके बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ब्रोमाइडो और स्ट्रॉन्ग थायोसायानाटो, इस तरह ये स्ट्रेंथ इनकी बढ़ते जाती है. दे विल गो ऑन इंक्रीजिंग द डेल्टा ओ वैल्यू till H2O, but till H2O we have to consider all these as weak ligands. इसके बाद जितने भी हैं आइसोथायोसायानाटो, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटाटो, these are all till carbonyl, these are all called as strong field ligands, right? These are all called as strong field ligands. Among the all ligands, carbonyl is the strongest ligand. Weakest iodido है और carbonyl सबसे strongest, right? So this is based on the absorption of light. Now, if I represent
delta O, that is the difference between the T2G and EG orbital, we represent by delta O in octahedral field. I can also write it as delta E, that is the change in energy. E2 minus E1 जो लिखते हैं, that is given as hc by lambda. H is the Planck's constant, c is the speed of light, and lambda is the wavelength of light. We can see the relationship over here. They are inversely proportional. The difference in the energy is nothing but inversely proportional to the wavelength of light. इसका मतलब ये हो गया, जितना डेल्टा O वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा कब होता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में. मतलब वो लिगैंड्स क्या करेंगे? That time what happens? Those electrons will be absorbing shorter wavelengths. Okay, those ligands, in presence of those ligands, the light or the wavelengths absorbed will be very very short. जब ज़्यादा एनर्जी गैप आता है, यानी कि डेल्टा O वैल्यू when it is large, shorter wavelengths are absorbed by the electrons. Okay, that is, those ligands will be causing the absorption of shorter wavelengths. अगर ये गैप कम है, डेल्टा O वैल्यू बहुत कम है, that time wavelength will be large. So ये गैप कब कम रहेगा? वीक लिगैंड के प्रेजेंस में. So in presence of weak ligand, the gap will be less, and it indicates that the wavelength of light absorbed will be very very large. Suppose gap बहुत ज़्यादा है, short wavelengths absorb होंगे. Shortest wavelengths violet region में आते हैं. So that particular compound will be absorbing violet wavelengths, and it will give out complementary color as yellow. Suppose gap बहुत कम है, larger wavelengths absorb होंगे, that is red wavelengths, and that compound will appear as blue or green, right? So this point you need to remember, because many times they have asked in CET and NEET part, arrange the following ligands in increasing or decreasing order of their absorption of wavelength or absorption of light. तो ये याद रखो, strong ligands absorb shorter wavelengths, and in presence of weak ligands larger wavelengths are absorbed. दोनों opposite है. Weak ligands will be absorbing larger wavelengths, and strong ligands will be absorbing shorter wavelengths. Okay, more the crystal field splitting when it will take place in presence of strong ligand. That time what happens? Shorter wavelengths are absorbed. Less the crystal field splitting when it happens in presence of weak ligands. That time what happens? Larger wavelengths are absorbed. Right? तो ओवरऑल अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक तो क्लासीफाई तो हम कर दिए. अब एग्जैक्टली इनको डिफाइन करना है, स्ट्रॉन्ग और वीक को किस तरह करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन, दैट विल सी हियर. Now, strong ligands are those which produce large magnitude of crystal field splitting. अभी हमने जो डिफाइन किया था वही है यहाँ पर. Strong field ligands are those which produce large magnitude of crystal field splitting, and weak ligands are those which produce small magnitude of crystal field splitting. Right? Strong ligands क्या करते हैं? They produce large magnitude of crystal field splitting. What are weak field ligands? They produce small magnitude of crystal field splitting. Or strong ligands are those where delta O is greater than P. What is this P now? P का मतलब यहाँ पे होता है pairing energy. Energy required to pair electrons in a single orbital. Energy required for electron pairing in a single orbital. अब जैसे कि एग्जाम्पल, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये चौथा, ये पांचवा, सपोज डी ऑर्बिटल है. अब ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा यहाँ पे पेयर अप होने वाला रहता है. राइट? तो ये पेयर होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस रहते हैं, तो उसको बैलेंस करके यहाँ पे पेयरिंग होने के लिए भी एनर्जी चाहिए रहती है. तो ये पेयरिंग एनर्जी, ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए, एक ऑर्बिटल में पेयर करने के लिए जो इस्तेमाल होगी, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी. राइट? अब ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताया हूँ. तो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है पेयरिंग आता है T2G और EG में करना रहता है. वो कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ओवरऑल यहाँ पे होगा क्या, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा O से, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स. अगर कोई लिगैंड्स का पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है,
तो वो होते हैं वीक लिगैंड्स। तो या तो आप पेयरिंग एनर्जी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं या फिर डेल्टा ओ के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा ओ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्मॉल क्रिस्टल फील्ड splitting, that time it will be weak ligand. Or strong ligands are those where delta O is greater than pairing energy, and weak field ligands are those where delta O is less than pairing energy. Okay. Now usually what happens whenever in a complex, when there are strong ligands, they form inner orbital or low spin complexes. Inner orbital or low spin or spin paired complexes already we have discussed in VBT. Those are the complexes where inner d orbital, n minus 1 d orbital is involved in hybridization. Okay, inner orbital or low spin complexes कौन से होते हैं? Those complexes where n minus 1 d orbital is involved in hybridization. ये कब फॉर्म होते हैं? खासकर स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में, राइट? और in presence of weak ligands what happens? Outer orbital or high spin complexes are formed, that is spin free complexes. Outer orbital or high spin or spin free complexes, those are formed when nd orbital is involved in hybridization. यानी कि outer most d orbital जब hybridization में participate करता है तो outer orbital और high spin complexes form होते हैं. Okay. स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में और क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू पेयर अप इन T2G ऑर्बिटल, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, पहले T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, बाद में EG ऑर्बिटल में जाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी. लेकिन वीक लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स T2G में पहले सिंगली जाएंगे, बाद में EG में जाएंगे, फिर T2G में पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हंट्स रूल अप्लाई होगा यहाँ पर. ओके. लेट्स सी हियर electronic configuration in presence of strong and weak field ligands. So here if you see, ये पूरे सपोज यहाँ पे 5d ऑर्बिटल है, लिगैंड के प्रेजेंस में दो अलग अलग सेट्स में ये डिवाइड हो गए. ये नीचे वाला होता है T2G और ऊपर वाला होता है EG. यहाँ पे भी वही होगा. ये वीक लिगैंड के प्रेजेंस में T2G and here it is EG. See the gap. गैप ज़्यादा होता है. स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉजेज लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, whereas weak ligand causes very small crystal field splitting. अब देखते हैं कौन से कॉन्फ़िगरेशंस स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के प्रेजेंस में सेम रहते हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के प्रेजेंस में डिफरेंट होते हैं. पहले स्टार्ट करता हूँ D1, यानी कि एक ऐसा आयन या मेटल आटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, D1. So that D1, one electron in d orbital, where it will go? लिगैंड के प्रेजेंस में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पूरे 5d ऑर्बिटल दो सेट में डिवाइड होते हैं, एक होता है T2G और दूसरा होता है EG. अब ये एक इलेक्ट्रॉन कौन से सेट में जाता है? कभी भी इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी सेट में जाते हैं, दैट इज T2G लोअर सेट फॉर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो कभी भी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G की एनर्जी EG से कम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में जाएंगे, राइट? तो D1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने दो या वीक लिगैंड रहने दो, T2G में जाएगा. तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट कैसा लिखते हैं? T2G1 EG0, राइट? क्योंकि EG में एक भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है. स्ट्रॉन्ग में भी वही कॉन्फ़िगरेशन, वीक में भी वही कॉन्फ़िगरेशन. D2 देखते हैं. D2 दो इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में. सो वेयर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विल गो? फर्स्ट ऑलरेडी इट हैज एंटर्ड इन T2G, सेकंड आल्सो विल गो इन T2G ओनली, यानी कि यहाँ पर because all the three are equal in energy, you will apply here Hund's rule. In weak ligand also D2. D3 third electron, again it will go in T2G, third electron, and here also third electron. अब दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के प्रेजेंस में T2G अब हाफ फिल्ड हो चुका है, राइट? इट हैज ओबेड द Hund's rule. Now it depends on the pairing part. Now we have discussed in presence of strong ligand pairing energy is less,
and presence of weak ligand, pairing energy is large. So when you talk about the D4 configuration, अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा या फिर T2G में जाएगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगैंड के ऊपर. लिगैंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड. स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, पेयरिंग एनर्जी. Delta O is greater than pairing energy, means pairing energy is less. So electron, instead of going here, it will pair up in the T2G orbital. क्योंकि pairing energy कम है, उतनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करके यहाँ जाने से बेहतर है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है T2G में ही पेयर अप हो जाता है, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज लेस. सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल अगेन मूव इन T2G orbital, means it will continue Hund's rule only in T2G, not in overall. Means overall in general we can say it is going against Hund's rule, right? ओवरऑल अगर पांचों ऑर्बिटल को एक साथ लेंगे तो ये अगेंस्ट हंस रूल हो गया, लेकिन T2G के मुताबिक ये अकॉर्डिंग टू T2G ऑर्बिटल्स इट इज फॉलोइंग द हंस रूल. लेकिन वीक लिगैंड के प्रेजेंस में होता क्या है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एज द एनर्जी गैप इज लेस, पेयरिंग एनर्जी इज मोर नाउ. Small gap is there but pairing energy is more, so instead of pairing here the fourth electron will go and occupy Eg orbital. Remember this is very important. D4 configuration strong or weak field ligand में change हो जाता है. So in strong field ligand what we write, T2G4 Eg0, whereas in weak field ligand we write T2G3 Eg1. 1 mark के questions आ सकते हैं. Write the D4 configuration in presence of strong and weak field ligand. So in presence of strong ligand configuration is T2G4 Eg0, in presence of weak ligand T2G3 Eg1. Okay. तो जब भी इस तरह T2G4 Eg0 आएगा तो ये टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जा रहे हैं. और वीक फील्ड लिगैंड के उसमें हम बोलेंगे उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, राइट. अब D5 भी देखते हैं. D5 में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इट विल पेयर अप हियर, whereas in weak ligand again one orbital was empty, it will be filled up here, right. So इस तरह T2G और Eg हाफ फिल्ड हो गया यहाँ पर वीक लिगैंड के प्रेजेंस में. So we configuration we write T2G3 Eg2. D6 sixth electron in presence of weak strong ligand it will go and pair up in T2G. अब T2G completely filled हो गया है और वीक लिगैंड में क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गए थे. अब सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए अब यहाँ पे हंट्स रूल अप्लाई होगा. सो दैट T2G इन दैट इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इन नाउ इन T2G ऑर्बिटल. तो पहले यहाँ पे पूरा सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होता है, बाद में पेयरिंग. यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, पहले ये तीन ही सिंगल ऑक्यूपाई होते हैं, बाद में पेयरिंग होता है, बाद में यहाँ पे Eg में इलेक्ट्रॉन एंटर होना स्टार्ट होते हैं. क्यों एंटर होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ऑर्बिटल नीचे फिलअप हो चुके हैं, राइट. तो सिक्स्थ हो गया. सेवेंथ देखते हैं. सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ कहाँ जाएगा, हम यहाँ तो तीन ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं, तो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर Eg में जाएगा, because there is no space, no orbital left out for occupying, so that seventh electron will go in Eg orbital, whereas here in weak ligand the seventh electron will pair up in T2G orbital. See the configuration of 7, T2G6 Eg1 for strong ligand and for weak T2G5 Eg2. ठीक है. तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गए, D4 D5 चारों टोटली D4 D5 D6 एंड D7 ऑल आर डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक. अब जब D8 को आएंगे आप, एट्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इन Eg ऑर्बिटल एंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड एट्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन दिस T2G ऑर्बिटल. अब देख सकते हैं T2G और Eg यहाँ पर T2G completely filled, Eg half filled. यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड में भी T2G completely filled, Eg half filled. दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम. इसका मतलब ये हो गया लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने दो या वीक लिगैंड रहने दो, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा. मीन्स से ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप के होते हैं, D2sp3 या फिर sp3d2, राइट. तो जब कोई आयन का कॉन्फ़िगरेशन D8 रहेगा, D8 मतलब
आपको जो है दो डी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहा तो भी अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए तो एक ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिलेगा। मीन्स इट विल नॉट इन्वॉल्व द इनर डी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इनर बोले तो दो आपको डी ऑर्बिटल होना रहता है, लेकिन आपको एक ही एम्प्टी मिलेगा। इस वजह से तब क्या हो जाता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट, sp3d2। वीक लिगैंड में खैर sp3d2 ही होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने के बाद अक्सर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जब d8 आएगा तो d2sp3 के बजाय sp3d2 होगा, राइट, इट विल पार्टिसिपेट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 लिगैंड्स ही है तब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। व्हेन यू कम टू d9 कॉन्फ़िगरेशन, ninth electron will go here, here also ninth electron will go here, यानी कि same d10, 10th electron will go here and 10th electron will go here, right. So this is the way how the configuration changes in presence of strong and weak field ligands. So this is one of the important factor which affect the crystal field splitting, right. तो पहला फैक्टर ये हो गया, और भी फैक्टर्स हैं वो एक एक करके हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के प्रेजेंस में होता क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से जो है आपको एक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क के। राइट द D4 कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड या वीक लिगैंड, या फिर D5 या फिर D6 या फिर D7। रिमेंबर, आउट ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशंस D4, D5, D6, D7 are different for strong and weak, whereas D1, D2, D3, D8, D9, D10 they are same for strong and weak field ligands. Okay.